بھی ایک نیا ٹاپک ڈسکس کریں گے. But before I carry on with the show, I would just like to say thanks to all the viewers جن کا ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے اور ڈے ان ڈے آؤٹ ہر آنے والے شو کو میں مزید بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہوں اس فیڈ بیک سے جو کہ آپ مجھے دیتے ہیں. آج کے شو میں ہم ڈسکس کریں گے نروس سسٹم. ویری کوئکلی آئی ول جسٹ ٹیل ایوری ون کہ یہ ایک لائیو شو ہے جس کے اندر آپ سب کال کر کے بات کر سکتے ہیں. آپ کے کوئی بھی ہیلتھ ایشوز ہیں آپ انہیں ڈسکس کر سکتے ہیں. The whole point of doing this holistic health show is to make you guys aware of different health issues. کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں اسپیشلی لیڈیز کو اور چلڈرن کو, اور اس کے علاوہ ان کے کیا سمٹمز ہو سکتے ہیں, اس کے لیے کیا کون سے علاج اویلیبل ہیں. اینڈ آئی ہوپ کہ ان پروگرامس میں جو بھی ڈسکس کر رہی ہوں اس کو آپ یوزفل پا رہے ہیں, اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. جو ایڈوائز آپ کو اس پہ جنرل ایڈوائز مل رہی ہے. اگر کوئی بھی کال کرنا چاہے شو اور شامل ہونا چاہے یا کوئی بھی سوال پوچھنا چاہے آیا آج کے شو کے ریلیٹڈ یا ان ٹاپکس سے ریلیٹڈ جو کہ ہم پچھلے شوز میں کر چکے ہیں, اینڈ آئی ول گو اوور دم ویری کوئکلی. ایک شو میں تو کمر درد کا ٹاپک کیا تھا ہم لوگوں نے کہ کمر کا اسٹرکچر کیا, اس میں کس قسم کی پرابلمز ہو سکتی ہیں. سو اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے کسی بھی قسم کی, اگر آپ کو درد ہے یا آپ کو کوئی پرابلم ہے بیک میں, بیک کے کسی بھی حصے کے اندر, یا آپ کے جوڑوں میں درد ہے جو کہ میرا سیکنڈ ٹاپک تھا آرتھرائٹس کے بارے میں, اگر آپ کے جوڑ سوج گئے ہوئے ہیں, ان کے اندر سویلنگ ہو گئی ہوئی ہے, یا آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں کوئی تکلیف ہے, تو آپ پلیز شو پہ کال کریں اور آپ جنرل ایڈوائز لے سکتے ہیں. آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں تھرو دس شو. اور اگر شو کے علاوہ ان ڈفرینٹ آورز اگر آپ بات کرنا چاہیں, اپنی بیماری کو ڈسکس کرنا چاہیں, کسی قسم کی ہیلپ چاہیں, تو اس صورت میں بھی آپ اسی نمبر پہ کال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ وی ول ٹرائی آور بیسٹ ٹو ہیلپ یو. ناظرین, پروگرام کا فارمیٹ یہ ہوگا کہ آج پچھلے پروگرام میں جو کہ میں نے لاسٹ ویک منگل کو کیا تھا, ٹیوزڈے کے دن ہم لوگوں نے ارتھرائٹس اور رومیٹزم کو ڈسکس کیا تھا, لیکن انفارچونیٹلی میں سارا ٹاپک کور نہیں کر سکی تھی پروگرام میں. تو آج کی میری کوشش ہوگی کہ ایک تو ہم وہ کور کر لیں ٹاپک, اور دوسرا ایک نیا ٹاپک جو کہ نروس سسٹم کے بارے میں ہے. ناؤ what I'm trying to do is ڈفرینٹ ٹائپس جو ہماری باڈی کے اندر سسٹمز ہیں انہیں میں ون بائی ون کور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. سو اس میں ڈفرینٹ قسم کی جو بیماریاں ہوتی ہیں ڈفرینٹ جسم کے حصوں سے ریلیٹڈ, وہ جیسے جیسے ہم حصے جو ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کرتے جائیں گے ہم ان بیماریوں کو ایڈریس کریں گے. اور میری بہت انتہا کی کوشش ہوگی کہ میں جتنی ہو سکے آپ کو ایڈوائز دے سکوں اس شو کے تھرو, جنرل ایڈوائز دے سکوں, جو ٹریٹمنٹ اویلیبل ہیں ان کے بارے میں بتا سکوں, اس بیماری کی کیا سمٹمز ہیں ہم لوگ وہ ڈسکس کر سکیں. سو ایز آئی سیڈ کہ اپنے پریویس شو میں ہم لوگ کر رہے تھے کانسنٹریٹ اسکیلیٹل, یعنی کہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں اور جو مسلز ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے. سو میں نے پہلے ڈسکس کیا تھا کمر درد کے بارے میں جو کہ آپ کی نیک, شولڈرز, بیک سارا کچھ انکلوڈ کرتا ہے. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے ڈسکس کیا آپ کے کیا کہتے ہیں پوسچر کے بارے میں کہ کس طرح کا بہترین پوسچر ہونا چاہیے, اور ڈفرینٹ قسم کی احتیاطی تدابیر, جس طرح کہ میں نے سجیسٹ کیا تھا کہ آپ وارم بوٹل لے سکتے ہیں. میں نے کچھ آئل سجیسٹ کیے تھے اس شو کے اندر. سو وہ ساری چیزیں جو ہیں آپ آپ کیچ اپ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے وہ شو مس کر دیا ہے تو یوٹیوب پہ بھی وہ شو اویلیبل ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہولسٹک ہیلتھ ریکارڈڈ 1 کے نام سے جو ٹی وی 99 پہ اگر آپ سبسکرائب کریں تو اس کے اوپر بھی اویلیبل ہے. اس کے علاوہ میرا ہولسٹک ہیلتھ کا پیج ہے, اس کے اوپر بھی وہی ریکارڈنگ اویلیبل ہے. تو پلیز ناظرین, اگر آپ میں سے کسی نے وہ مس کر دیا فار اینی ریزن, آپ کو کوئی انفارمیشن اس کے بارے میں چاہیے تو آپ اس پہ وہ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے اس بیک سے پرابلم سے ریلیٹڈ تو وہ بھی آپ اسی پروگرام میں کال کر کے ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ سیکنڈ پروگرام جو تھا وہ دین کیرنگ آن فرام دا اسکیلیٹل سسٹم آیا رومیٹزم جو کہ ہڈیوں کا اگین ریلیٹڈ ٹو بونس.
हड्डियों की जो प्रॉब्लम थी उससे हम लोग रिलेटेड बातें की थी हमने लास्ट वीक के ट्यूसडे के प्रोग्राम में. थर्सडे को मैं नहीं आ सकी जिसके लिए मैं बहुत माजरत खा हूँ. फॉर सम पर्सनल रीज़न आई कुड नॉट मेक इट, बट इंशाल्लाह यू नो एज वी प्रोग्रेस द एम इज़ के जो डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, वी विल वर्क थ्रू देम इन अ प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैनर, और उनके रिलेटेड जो बीमारियाँ आती जाएंगी उनको हम डिस्कस करते जाएंगे. आज का शो बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज के शो में मैंने द नेक्स्ट थिंग आई हैव डिसाइडेड आफ्टर स्केलेटल सिस्टम, हड्डियों के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब हम लोग बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, क्योंकि नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा जो आपकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उससे काफ़ी रिलेटेड है. सो आई थॉट कि अगर क्योंकि हम लोग डिस्कस करते रहे हैं रीढ़ की हड्डी के बारे में, सो विल बी अ गुड थिंग टू डिस्कस नाउ मूव ऑन टू नर्वस सिस्टम. सो आज के शो में हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में. अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं इस मुल्क में. सो आई एम होपिंग कि आज के प्रोग्राम के बारे में आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, यू नो, इफ़ नॉट टू मच, बट सम ऑफ इट आई विल ट्राई टू डिलीवर. इट्स अ ह्यूज टॉपिक, यू नो, डिप्रेशन, बट कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें और जो कॉमन चीज़ें हैं लोगों में, वो हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस शो के दौरान. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रूमेटिज्म एंड आर्थराइटिस. लास्ट शो में मैंने बताया था कि ये दो डिफरेंट बीमारियां, रूमेटिज्म और आर्थराइटिस जो है, इसलिए इसको प्लीज़ मिक्स ना करें. सबसे पहले अगर आपकी हड्डी के इर्द गिर्द के जो मसल्स हैं उनके अंदर प्रॉब्लम शुरू होती है, जो टेंडन्स जिन्हें हम कहते हैं, जो हड्डियों को आपस में जोड़ के रखते हैं, बेसिकली वो रेशे टाइप मसल्स जो हैं, वो मसल्स जो हैं अगर उनमें आपकी इन्फ्लेमेशन, मतलब कि सूजन पैदा हो जाती है, तो वो रूमेटिज्म में अनफॉर्चुनेटली डेवलप हो जाता है. लेकिन जब आप इसको छोड़ देते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो जो सूजन की वजह से क्या होता है कि हड्डियां डिस्प्लेस हो जाती हैं अपनी जगह से, और हड्डियां फूलना शुरू हो जाती हैं, और उनके दरमियान में जो कार्टिलेज होती है वो वेयर आउट होना शुरू होती है, टूट जाती है. तो वो जो प्रॉब्लम है, जिस वक्त आपकी कार्टिलेज इफेक्ट होना शुरू हो जाती है, तो वो क्या होता है कि वो फिर आपकी हड्डियों को इफेक्ट करता है, और देन दैट टर्न्स इनटू आर्थराइटिस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो ये दो प्रॉब्लम्स हैं. लेकिन बेसिक मसला क्या है कि आपको व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस. आपके जोड़ सूज जाते हैं. समटाइम्स जो जोड़ों की जगह होती है वो लाल रंग की हो जाती है, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिस तरह सोजन हो जाती है, आपको दर्द महसूस होता है, इस तरह लगता है इस तरह पस पड़ी हुई है जोड़ों में, इस किस्म के पानी पड़ा हुआ है जोड़ों में, इस किस्म की जो सारी फीलिंग्स हैं नाज़रीन, that shows that you are suffering from arthritis. Now कितनी severe होती है जो feeling है, वो that is dependent on कि कितना chronic आपका हो चुका है arthritis. मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि अर्थराइटिस लोग समझते हैं कि यू नो लाइक हड्डियों की डिफेक्ट्स की वजह से होता है. हालांकि हकीकत ये है कि अर्थराइटिस में हड्डियों में डिफेक्ट ज़रूर हो जाता है, लेकिन अर्थराइटिस जो है वो नॉर्मली शुरू होता है जब आपके क्या कहते हैं इनको, डिप्रेशन में ज़्यादती आ जाए, जब आपके स्ट्रेस में ज़्यादती आ जाए. अगर आपको किसी किस्म का, फॉर एग्ज़ाम्पल यू नो, कोई अगर हैं उनको किसी किस्म का कोई गिल्ट है, कोई उनके दिलो दिमाग में कोई ऐसी बात है जो कि उनके सिस्टम से नहीं निकली है, सो इन सूरतों में भी आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है. सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि अर्थराइटिस किसी जस्ट सिर्फ और सिर्फ हड्डियों की बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि अर्थराइटिस नाम है आपके दिमागी और इमोशनली रिलेटेड बीमारियों की वजह से भी अर्थराइटिस हो सकता है. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट थ्रू कि अगर किसी ने कोई बात अपने दिल में रखी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर किसी को कोई रिजेंटमेंट है, कोई गिल्ट है, तो वो चीज़ें जो स्ट्रेस में, जिनको आप जानते हैं स्ट्रेस के नाम से, ये चीज़ें भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम पैदा कर सकती हैं. सो लास्ट प्रोग्राम में मैंने कुछ बीमारियाँ कुछ चीज़ें मेंशन की थी जो कि मैंने कहा था कि आप खा सकते हैं, जो कि आप यूज़फुल, you know, you will find them useful. I said that try to eat organic vegetables and fruits, and the vegetables you can eat them raw, or you can cook them, you can steam them, you can boil them, grill them. जो भी हेल्थी तरीका है उनका, मतलब ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल किए बगैर आप वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें.
इसके अलावा मैंने कहा था जो आप अवॉइड करें वो एनीथिंग दैट इज़ सिट्रसी, मतलब जिसके अंदर एसिड है, यू नो, वो वाले फल या फ्रूट या सब्जियां जो हैं वो आप अवॉइड करें. सो फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि टमाटर और संतरे, क्लेमेंटाइन्स, ऑरेंजेस, माल्टे, यू नो, ये जितनी भी मतलब किस्में हैं संतरे की, वो सारी आप, माल्टों की, वो आप अवॉइड करें क्योंकि उनके अंदर एसिड पाया जाता है और वो आपकी हेल्थ अर्थराइटिस की प्रॉब्लम के अंदर वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है. सो ये आप थोड़ा सा परहेज़ करें. इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि आप परहेज़ करें विनेगर का, मोल्ट विनेगर जो है, ब्राउन विनेगर, उसका आप परहेज़ करें. और अगर आप हो सकता है तो ब्राउन राइस, ब्राउन आटा इस्तेमाल करें. इसके अलावा मैंने कहा था कि रेड मीट का हो सकता है तो आप परहेज़ करें, रेड मीट ना खाएं, उसको सब्स्टिट्यूट कर लें आप वाइट मीट, जिस तरह फ़िश वगैरह जो है, चिकन है, उसको आप ज़्यादा इस्तेमाल करें अगर आप इफ़ यू आर फ़ैन ऑफ मीट. इसके अलावा दालें आर ऑलवेज़ वेरी गुड, दालें आप खा सकते हैं. ज़्यादा कॉफ़ी का, ज़्यादा मीठे का, ज़्यादा मिर्चों से परहेज़ करें, स्पेशली कॉफ़ी वगैरह. मैं इसलिए कह रही हूँ, कॉफ़ी हो गई, चाय हो गई, इन चीज़ों के लिए मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि इनके अंदर टेंडेंसी होती है टॉक्सिन्स पैदा करने की. सो आपकी बॉडी में अगर टॉक्सिन्स भी ज़्यादा हो जाएं, फिर अगर उनको आपकी बॉडी सही तरह, इफ़ योर बॉडी डज़ नॉट गेट रिड ऑफ द टॉक्सिन्स, तो उस सूरत में भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है. सो आप कोशिश करें कि इन चीज़ों से आप अवॉइड करें. एक आध कप अगर हो जाए दिन में चाय का तो दैट्स नॉट बैड, लेकिन अगर आपको आदत है, मतलब एडिक्टिव है अगर आप चाय के, तो आप कोशिश करें कि वो आप अवॉइड करें. इसके अलावा नाज़रीन, मैंने एक टिप बताई थी जो कि अर्थराइटिस के लोगों के लिए बहुत मुफीद है. और रिमेंबर, मैंने लेमन का ये है कि लेमन आप अकेला मत खाएं, जिस तरह कि सिर्फ लेमन पानी सैलड में डाल के हो रहा, या वैसे अगर आप लेमन को खाना पसंद करते हैं बग़ैर किसी चीज़ में डाले बग़ैर, तो वो ज़रा अवॉइड करें क्योंकि फिर उसका असर, आपकी तासीर आपके जिस्म पे और होती है. लेकिन अगर एक गर्म पानी के अंदर, एक गिलास गर्म पानी में बॉइल्ड वाटर जिसके अंदर सोडियम हाई हो, विच वुड बी योर मिनरल वाटर, अगर आप मिनरल वाटर कर लें तो बहुत ही अच्छा. अगर मिनरल वाटर नहीं अवेलेबल है तो सादा टैप वाटर केटल में डाल के बॉईल करें. उसको आप एक गिलास पानी भरें गर्म पानी का, उसके अंदर आप 1 टेबल स्पून क्या कहते हैं नींबू डालें और 1 टीस्पून शहद डाल के अगर वो आप सुबह पी लें, खाली पेट पीना है, नहार मुँह पीना है, तो इंशाल्लाह आपको जो जोड़ों के अंदर जो सूजन हो जाती है और जो टॉक्सिन्स बिल्डअप हो जाते हैं वो रिलीज़ करने में ये बहुत बहुत मदद देगा. तो इससे ये होगा कि थोड़े से जो आपके जोड़ हैं वो मूवमेंट करने में आपको आसानी पैदा होगी जब उनकी सूजन कम हो जाएगी. इसके अलावा मैं बताना चाहती थी पिछले प्रोग्राम में कि सप्लीमेंट्स हैं आउट देयर, किसी भी हेल्थ शॉप से आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं. तो आप कोशिश करें कि वो सप्लीमेंट्स वैसे भी आप अपनी डाइट में इस्तेमाल करें. दे आर वेरी गुड टू यूज़. द सप्लीमेंट्स दैट यू विल फाइंड हेल्पफुल आर कॉड लिवर ऑयल एंड इवनिंग प्राइमरोज ऑयल. उसकी डेली यूसेज की इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो बॉटल पे लिखी होती हैं. सो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बॉटल पे पढ़ें और उस लिहाज से आप उसकी डेली यूसेज जो बताया गया है वो करें. इसके अलावा नाजरीन, मैं बताना चाहूँगी कि अरोमा ऑयल्स, ये शो क्योंकि it's a holistic show, and by holistic I mean के treating your mind, your body and your spirit. So मेरी प्रैक्टिस में एक वक्त के अंदर आई ट्राई टू, जो मेरी अप्रोच है ट्रीटमेंट की, आई ट्राई टू ट्रीट यू होलिस्टिकली, विच बेसिकली मीन्स कि आपके एट द सेम टाइम आपके जिस्मानी बीमारियां दूर हो रही हैं, आपकी रूहानी बीमारियां दूर हो रही हैं और आपकी मेंटल और इमोशनल बीमारियां दूर हो रही हैं. क्योंकि मैं अपने पहले प्रोग्राम से ये बात कहती आ रही हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम एक जिस्मानी लेवल पे नहीं होती. प्रॉब्लम आपको मेंटल लेवल पे भी हो सकती है, इमोशनल लेवल पे भी स्टार्ट हुई हो सकती है, जिसका असर फिर जिस्मानी तौर पे बाहर नज़र आता है और देन हम लोग ट्राई करते हैं उसको डील करने की. सो नाजरीन, okay, we have a live caller. Assalamu alaikum. Hello. Okay, sorry, the call's been dropped. You can call again, Nazreen. It is a live show. When you will call, they will put you straight toward to me. The number is on the screen.
اور آپ کسی بھی قسم کی بات کر سکتے ہیں جو ہیلتھ ایشو ہے آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ. میں اگین گوئنگ بٹوین ڈفرنٹ تھنگز ایٹ دا مومنٹ فرام بیک ٹو arthritis. تو اگر ان سے کوئی بھی ریلیٹڈ آپ کا ایشو ہے یو لائک ٹو ڈسکس آپ بات کر سکتے ہیں. بٹ ناظرین میں سب کو سننے والوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کا کوئی بھی ہیلتھ ایشو ہے تو پلیز دا فرسٹ پوائنٹ آف کال شوڈ بی یور جی پی اور یور لوکل ہیلتھ سینٹر. آپ ادھر جائیں اور ان کو اپنی پرابلم بتائیں, ان کے ساتھ ڈسکس کریں, اپنا ایشو انویسٹیگیٹ کریں اینڈ دین یو فائنڈ آؤٹ ایگزیکٹلی واٹ از رانگ ود یو. پراپر ڈائگنوسس کروائیں اور اپنے جی پی سے ڈسکس کریں, ان کی ہیلپ سیک کریں. اگر اس کے علاوہ آپ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہیں یا آپ اروما تھراپی سے ٹریٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اینڈ آئی ہیو ادر ٹیکنیکس دیٹ آئی یوز اینڈ ادر تھراپیز آئی یوز. سو اگر آپ علاج ہم سے کروانا چاہتے ہیں کسی بھی بیماری کے بارے میں تو آپ اس نمبر پہ کال کر کے اپنا نمبر چھوڑ سکتے ہیں. وی کین کال یو بیک اس گھنٹے کے دوران یا اس گھنٹے کے باہر بھی ایٹ ڈفرنٹ ٹائم یو کین کال آن دا سیم نمبر اینڈ لیو یور نیم اینڈ یور کانٹیکٹ ڈیٹیلز اینڈ وی کین گیو یو اے کال بیک. Okay, we have another live caller. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Hello, can you hear me? Hello? Hello? Hello, is anyone there? I cannot hear anyone. I think probably the call has been dropped. اچھا مجھے بہت ڈسٹینس سے آپ کی آواز آ رہی ہے, کلیئر نہیں آ رہی ہے. اچھا جی, اب آپ کو بہتر ہوئی ہے آواز؟ اب آ رہی ہے جی. جی السلام علیکم. Am I talking to the right person now? Yes, you are. How can I help you? وعلیکم السلام. ہاں جی, میں نے یہ کہنا تھا کہ آپ لیمن اور ہنی کا بتا رہے تھے جی, تو کہ جوڑوں کی دردوں کے لیے I totally agree with it. مگر صرف جو لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتا ہے نا جی, تو ان کو شاید اگر وہ خریدتے ہیں تو ہمارے لوگ اکثر جو ہے نا کوالٹی سٹف نہیں خریدتے, وہ تھوڑا سا سستی چیز اٹھا لیتے ہیں. تو شاید جو ہے جتنی دیر تک اچھا یہ مناقع کا شاید نہ ہو تو نہ خریدیں, وہ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے, کوئی 8-9 پاؤنڈ کا ہوتا ہے. جی صحیح. تو وہ جو ہے وہ بہتر ہے کیونکہ کئی شاید یہاں انگلینڈ میں بھی شوگر بیسڈ ہوتے ہیں. میں نے صرف یہ پن پوائنٹ کرنا تھا. تو مجھے بھی ڈائبٹیز ہے تو مجھے بہت کیئرفل رہنا پڑتا ہے کہ کیا چیز میں میٹھی جو ہے استعمال کر سکوں. بہت 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 شکریہ فار یور کال. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار یور فیڈ بیک. I would just like to add on to it. Okay, first of all, thank you very much for helping everyone with your, the people who may be suffering with diabetes. This is the whole point, Nazreen, کہ اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے پاس جو اچھی انفارمیشن ہے, جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے, وہ ہم شیئر کر سکیں. اور all the sisters and brothers out there جن کو کوئی پرابلمز ہیں, ہم لوگ ایک اوپن پلیٹ فارم پہ اس کے بارے میں ڈسکس کر کے سب کو اس کے بارے میں اویئر کر سکیں. سو تھینک یو ویری مچ سسٹر فار یور فیڈ بیک. اور میں بھی اس پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اٹس ویری ٹرو کہ اسپیشلی جب آپ جو غذائیت ہے اس کا آپ کی زندگی میں بہت اہم رول ہوتا ہے. یو آر واٹ یو ایٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. سو اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ آپ اپنی ذات کے لیے, اپنے کھانے پینے کے لیے جو ہے وہ بہترین اشیاء کا استعمال کریں. سو honey is concerned, I can recommend you they are good places, especially جو Iranian or Turkish shops ہیں, وہاں پہ sometimes you can actually find out pure honey which is of very good quality. So rather than buying from کسی random جگہ سے جہاں پہ آپ کو پتہ نہیں. I know for definitely that some Iranian and some Turkish shop definitely have a very good quality of honey.
تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور جہاں تک شہد کی بات ہے وہ ویسے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر شفا بیان کی ہے. سو شہد تو ویسے بھی اگر آپ صبح نہار منہ کہتے ہیں کہ ایک گلاس گرم پانی میں استعمال کریں, اگر آپ نے لیمن نہیں بھی کرنا تو اس کے اندر بہت ساری شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ پائی جاتی ہے. سو it's a good thing to take anyways, but the one I suggested with the in the quantities or with the lemon garam pani ke saath is to reduce the inflammation, and I hope you will find it useful. So Nazreen, we will get back to what I was talking about. میں suggest کر رہی تھی کہ آپ اگر okay, we have another live call. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Hi, can you hear me? Yes, connect me with the program. I want to ask something from the madam who's doing the program. Yes, I can hear you. You can ask me the question. I can hear you. Huh? I can hear you. Oh, hello. Hi, I'm speaking. You are live. You are on you are speaking through to me. You are live. What would you like to ask? Madam, I want to ask something from the madam who's doing the program. Yes, I think you need to put the volume down. If you switch off the volume of your TV and talk to me through the telephone, then I will be able to hear you clearly. I want to ask that I got the paralysis attack 75 days before in India. Madam, so it became all right there, but that was very Sir, could you please put the volume down? You need to put the volume down of your television, or you need to go into another room to talk to me. Try and listen me through the telephone handset. That my left feet and leg came in the problem. I was taking the medicine from there. At that time I took the medicine, I became all right now. But madam, my feet is now I feel heavy feet. That was on the attack on the left side. First listen. So the attack was on the left side, but you're feeling pain on the right side. Madam, now I took the medicine from there. At that time I took the medicine, I became all right. Could you please put the volume down? Now I'm feeling that the right leg is also feeling heavy. Now I'm feeling a heaviness on the right side also. On the right side, okay. Now I'm feeling the left feet and leg is also feeling heaviness. I'm feeling the weight is there, something. I'm feeling like that. Okay. I would suggest. I can talk in Hindi, madam. सुनिए. हाँ जी, मैं हिंदी मैडम, में मेरे बोल को सकती अभी जो पाँव और वो लात है नीचे का साइड, heaviness on the leg. सही है, आप इस Leg was not attacked. At that time there was no problem in the leg. Okay. Attack on the left side. Okay, what I want you to do is what I would like you to do is I would like you to carry on listening to the program. वजन लगता है पाँव में, दोनों पाँव में. जी ठीक, मुझे समझ आ गई है. मतलब it was very difficult to understand. There was a lot of echo और आवाज रिफ्लेक्ट हो रही थी. But I have sort of I know what you're talking about. So आप इस तरह करें कि आप प्रोग्राम सुनते रहें. I will be answering your question through the program. I have sort of gathered what you're talking about, even though the line was quite bad. But I will definitely discuss it before the end of the program. So Nazreen, I was saying कि अगर आपको कोई भी मसला है, first point of call should be your GP. आप उनके पास जाएं, अपना डायग्नोसिस करवाएं एक प्रॉपर तरीके से थ्रू ब्लड टेस्ट, एक्सरेज, MRI स्कैन्स, CT स्कैन्स, जो भी ज़रूरत है उसका डायग्नोसिस करवाएं. उसके बाद whatever they suggest, I would say that you do take the first steps. आप जो भी वो suggest करते हैं उसको आप तरीका इलाज को अपनाएं. अगर उसके अलावा
अलावा आप एक अल्टरनेटिव अप्रोच ट्राई करना चाहते हैं, देन आई एम हियर टू हेल्प यू। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये नंबर है, आप इस पे कॉल करके प्रोग्राम के बाद अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं आपका थॉरली केस लूँगी। क्योंकि नाज़रीन मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ कि एक 5 मिनट की या 10 मिनट की कॉल में या 2-3 मिनट की बात में मैं कोई एक जवाब आपको नहीं दे सकती, कोई एक मेडिसिन नहीं दे सकती। ऑब्वियसली जिस बीमारी को इतना भरने में काफ़ी अरसा लगता है, वो बीमारी 1-2 मिनट की बात से हल नहीं की जा सकती, एक दवाई से हल नहीं की जा सकती। होम्योपैथिक तरीका इलाज में हम लोग सिर्फ एक बीमारी को ट्रीट नहीं करते हैं, बल्कि पूरे इंसान को ट्रीट करते हैं। और हमारा ये कहना है कि जो बीमारी है वो इमोशन मेंटल लेवल पे भी पाई जाती है। सो नाजरीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंसल्टेशन करें प्रॉपरली एक क्वालिफाइड होम्योपैथ के साथ, और उसके बाद फिर जो है आप प्रॉपर तरीका इलाज करवाएं over a period of time, and that can help you definitely. So I'm very quickly going to give you some oils that can help you अगर आप arthritis से सफ़र कर रहे हैं। तो सबसे पहला ऑयल जो कि मैंने आपको पहले बताया था, आर्थराइटिस की एक वजह हो सकती है कि आपके टॉक्सिन्स जो हैं वो आपकी बॉडी में जमा हो गए हैं। सो आपकी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने का क्या तरीका है? इसके लिए लेमन जो है वो बहुत अच्छा है। लेमन को आप गर्म हॉट टब में भी डाल सकते हैं चंद कतरे, या इसके अलावा आप बेस ऑयल यानी कि अगर आप चाहें तो वेजिटेबल ऑयल ले लें, चाहें तो आलमंड ऑयल ले लें, ऑलिव ऑयल ले लें। 1 टेबलस्पून इस ऑयल का लेके उसके अंदर 1 या 2 कतरे लेमन के डाल के उसको भी उस जगह पे मसाज कर सकते हैं। स्पेशली जो नॉर्मली क्या होता है कि जो एंकल होती है उसके ऊपर, और जो आपके घुटने होते हैं उन हड्डियों पे जो कोनियां होती हैं, मतलब जो बड़े जोड़ हैं जिस्म के अंदर, उन जोड़ों के अंदर ज़्यादातर इन्फ्लेमेशन पाई जाती है, काफ़ी सोजन हो जाती है। सो उन जोड़ों के ऊपर अगर आप मसाज करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उससे फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको सूजन के साथ साथ दर्द भी है, एक तो सोजन है और जो कि लाल रंग की हो चुकी है, और उसके साथ आपको दर्द भी है, तो आई वुड सजेस्ट कैमोमाइल, उसका ऑयल आप इस्तेमाल करें। अगेन सेम तरीका है, 1 टेबलस्पून आपने बेस ऑयल लेना है और उसके अंदर 1 आध कतरा, 1 से 2 कतरे जो है आपने इस ऑयल के डालने हैं कैमोमाइल के, और उसको भी आप मसाज कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है कि आपकी उंगलियां, आपकी टोज हिल नहीं रही है, बहुत ज़्यादा अकड़ी हुई है और उसको हिलाने पे आपको दर्द महसूस होता है, तो उस सूरत में एक और ऑयल है जो कि है ब्लैक पेपर ऑयल, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन सेम तरीका है। ये तमाम ऑयल आप टब में भी डाल के हॉट वाटर बाथ टब में डाल के उस तरह उसके अंदर थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप स्किन में भी इनको मसाज कर सकते हैं। सो आई विल क्विकली गो बैक टू दिस gentleman who just gave me a call, who had who paralyzed the left side, and now then it got better by taking medication. There was a and now you're feeling heavy on the right hand side. ये सबसे I would say कि ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक साइन है, क्योंकि अगर आपको पैरालिसिस होता है और वो लेफ़्ट साइड पे है, और नॉर्मली इट इज़ द लेफ़्ट साइड जहाँ पे पहले अटैक होता है, और देन वो बेहतर हो गया, विच वाज अ गुड साइन, बट नाउ यू फीलिंग हैवी ऑन द राइट हैंड साइड इज़ नॉट अ गुड सिम्टम। बेहतर है कि इसकी जो एहतियाती तदबीर हैं वो आप करें, विच वुड बी डेफिनेटली टू सीक अर्जेंट ट्रीटमेंट एंड टू डू फिजियोथेरेपी एंड टू टेक योर मेडिकेशन। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं इस अटैक की। सो आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट थिंग यू शुड डू, आप अपने जीपी से रब्ता करें, जो भी वो आपको मेडिसिन सजेस्ट करें आप वो लें। उसके अलावा आई हैवंट गॉट मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू टू एग्जैक्टली फाइंड आउट कि इसका कोर्स क्या हो सकता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू विश टू स्पीक इन डेप्थ अबाउट इट एंड यू विश टू सीक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। उसका क्या होगा कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट डज कपल ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम। एक तो वो आपको आगे अटैक होने से प्रिवेंट करता है, दूसरा वो क्या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का फ़ायदा है कि इट्स अ जेंटल अप्रोच। जो साइड इफ़ेक्ट्स नॉर्मली होते हैं दवाइयाँ काफ़ी लेने के, वो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। जो आपका ट्रीटमेंट है इट विल बी मच मोर जेंटलर
और फर्म. सो एक तो जेंटल अप्रोच होगी कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं होंगे. दूसरा आइंदा स्ट्रोक आइंदा पैरालाइज होने से एनी साइड इट विल प्रिवेंट यू. और दूसरा जो कि सिम्टम्स हैं एट द मोमेंट, द हैवीनेस इन योर लेग एंड इनएबिलिटी टू मूव योर लेग फ्रीली, वो सिम्टम्स जो हैं वो भी कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे एट द सेम टाइम. सो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट दैट यू डू कंसल्ट if you're willing to approach an alternative, if you're willing to take an alternative approach to treating your problem, then you can call the same number. या जिस वक्त नाज़रीन आप कॉल करते हैं या जिस वक्त आप कॉल करते हैं तो मेरे से बात ख़त्म करने के बाद आप अपना नंबर और आप अपना नाम को कॉल सेंटर में छोड़ सकते हैं, and then we can definitely call you back. So नाज़रीन, what I'm going to do, I think I have sort of covered more or less on the. Hello, Assalamu alaikum. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो जी. हेलो, मुझे आवाज़ नहीं सही तरह आ रही. हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? जी हाँ. हाँ जी. मुझे ना बैक प्रॉब्लम है, काफी देर से 10 साल से बैक प्रॉब्लम है. तो कभी डॉक्टर से पूछा तो वो कहते हैं डिस्क मूव हो जाती है. कभी हैवी सामान उठाती हूँ तो बहुत प्रॉब्लम होती है. तो सर्दी भी बहुत लगती है, ठंडी पाँव ठंडे हो जाते हैं. तो पता नहीं क्या हो जाता है, एकदम ठीक ठाक होती है, एकदम बैक को बहुत प्रॉब्लम होती है. जी मेरी बहन, कौन बात कर रही हैं आप? जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शमीम है, मैं बर्मिंघम से बात कर रही हूँ. शमीम, कि आप इस तरह करें कि आप सुनते रहें, मैं आपको बताती हूँ. मैंने एक पूरा प्रोग्राम किया था स्लिप डिस्क पे और बैक प्रॉब्लम पे. मैंने देखा, मैं तो आज ही मुझे तकलीफ थी, आज ही आपका प्रोग्राम देखा पहली दफा, तो आप पहली दफा ही आज मैं कॉल कर रही हूँ. तो प्लीज मुझे कुछ अच्छी सी बताना, मैं सुनूंगी आप. जी डेफिनेटली, आप सुनते रहें, मैं आपकी सवाल का डेफिनेटली जवाब दूंगी. ओके, थैंक यू वेरी मच. ओके जी, अल्लाह हाफिज. Thank you very much for calling. Thank you all of you who are calling in the program and who are giving me feedback outside the program hours. I'd really appreciate it, and I'm trying my best to give you a general advice जिससे कि तमाम नाज़रीन फ़ायदा ले सकें और आपको एक जनरल अवेयरनेस हो बीमारियों के बारे में, उनके सिम्टम्स के बारे में और क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं. अगर आप एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच जैसा कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं अपनी बीमारियों के लिए, तो उसके अंदर क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं. this is the whole point of being here. So today I'm going to be moving on to my next topic, which is about nervous system. जैसे कि मैंने कहा था कि बैक किया, उसके बाद अर्थराइटिस किया जो कि जोड़ों से रिलेटेड है, हड्डियों से रिलेटेड है. अब हम नर्वस सिस्टम पे मूव कर रहे हैं क्योंकि नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली वो भी रीढ़ की हड्डी से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है. सो दैट इज़ द रीज़न आई एम मूविंग ऑन टू इट नाउ. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम एग्जैक्टली. बेसिकली होता क्या है कि हमारे होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक और वैसे भी जनरली अगर आप देखें तो इंसान के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो उसका दिमाग है, क्योंकि बहुत सारा इन्हिसार एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चलने का, उठने बैठने का, इन सब चीज़ों का इन्हिसार जो है, इवन हार्ट की मूवमेंट का भी. आई नो इस हार्ट जो है वो इट्स इनवॉलेटरी मूवमेंट, लेकिन आपका ब्लड जो सर्कुलेट होता है, इन सब चीज़ों का जो इन्हिसार है काफ़ी हद तक आपके दिमाग पे होता है. सो दिमाग जो है वो जिस्म का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है. इसके साथ जो है इमोशंस और जो हैं वो सेकंड इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके इन योर बीइंग बेसिकली, क्योंकि जो इमोशंस और फीलिंग्स होती हैं अगर वो सही तरह डील ना की जाए, दे कैन टर्न इनटू फिज़िकल प्रॉब्लम्स. अनफॉर्चुनेटली फिज़िकल प्रॉब्लम्स में वो किस तरह पे ज़ाहिर होती हैं. आपको फॉर एग्जांपल अगेन अर्थराइटिस हो सकता है, आपको शिंगल्स हो सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको बैक प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बहुत सारी बीमारियां जो कि आज के ज़माने में जानी जाती हैं लो इम्यूनिटी की वजह से. ये सब बीमारियां जो है इनकी जो रूट कोज है वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके मेंटल और इमोशनल सिम्टम्स होते हैं. अगर आप मेंटली इमोशनली डिप्रेस हैं, एंक्शियस हैं, डाउन फील कर रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं, तो इसका इफ़ेक्ट इवेंचुअली आपकी बॉडी के ऊपर होगा अनफॉर्चुनेटली. सो
as I said, it's very, very important. Earlier, I've been saying it from day one. It's very, very important कि आप अपने mental and emotions जो हैं उनको level जो है उसको maintain रखें. अब आप खुश रहें, आप अपने आप को mentally healthy रखें, stress से दूर रहें. I know it's difficult, but you can try it. मैंने meditation का suggest किया था, and I remember it, and I will be discussing it later on in my programs. Meditation के बारे में हम लोग बात करेंगे. So and I will suggest some techniques that you can take meditate करने के लिए. So ये सब चीज़ें जो है आप ये करें ताकि stress जो है वो आपसे दूर रहे. अगर आप manage कर लेते हैं stress से दूर रहना, तो यकीन करें कि आपकी बहुत सारी बीमारियां जो हैं उनका हल आपको खुद से मिल जाएगा. अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखते हैं, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप थोड़ी थोड़ी एहतियात करते हैं in terms of your posture. अभी एक सिस्टर ने कॉल की थी. I will go back to your question because it's quite related now. Miss Shamim from Birmingham. आपने कहा कि आपको बैक प्रॉब्लम है और हैवी लिफ्टिंग की वजह से ये प्रॉब्लम शुरू होती है. सो यू नो दिस इज़ एन एग्जांपल. अगर आप यूट्यूब पे जाएं, मेरा पहला प्रोग्राम पूरा प्रोग्राम बैक पे था, जिसके अंदर मैंने आपको टिप्स बताई हैं जो आप टिप्स इख्तियार कर सकते हैं घर में बैक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. उसके अंदर मैंने ऑयल्स बताए हैं जो आप मसाज कर सकते हैं. इसके अलावा आपको मैंने तरीका बताया कि क्या पोस्चर आपको इख्तियार करना चाहिए बैक की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए. सो यू कैन वॉच दैट प्रोग्राम. हैवी लिफ्टिंग, जिस वक्त मैं वैसे ही आपको एक क्विक एडवाइस दे दूं कि जिस वक्त भी आप कोई चीज़ उठाने लगते हैं, मेक श्योर कि जो आपके पाँव हैं वो दोनों आपस में जुड़े हुए और स्ट्रेट हों, और उसके बाद आपका जो वेट है वो सारा आपकी बैक पे होना चाहिए, नॉट इन टर्म्स ऑफ योर लोअर बैक जो है, और आपके पाँव जो है स्टेबल होने चाहिए. मतलब दोनों हिस्सों पे, बॉडी के दोनों साइडों पे आपका बराबर का वेट होना चाहिए और स्टेबल आपको पहले अपने आप को करना चाहिए. फिर थोड़ा इस आगे को कभी ना झुके, हमेशा पीछे को झुक के, पीछे को रह के फिर उसको लिफ्ट अप करने की कोशिश करें, ताकि जो वेट आप जो ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं उसका वेट इक्वली डिस्पर्स हो आपकी बॉडी के ऊपर. सो दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इसके अलावा अगर आप मज़ीद डिस्कस करना चाहें नाज़रीन जो कि लंदन से बाहर हैं, उनके लिए भी सहूलत मैसर है. आप टेलीफोन कंसल्टेशन कर सकते हैं और आपकी जो रेमेडीज़ हैं, जो भी आपको ज़रूरत हो रेमेडीज़ वगैरह की, वो आपकी रेमेडीज़ हम पोस्ट कर सकते हैं आपको सिक्योर पोस्ट के थ्रू, और आपकी रेमेडीज़ आपको मिल जाएंगी. आप कंसल्टेशन पूरी just as you sit by attending into the clinic, जिस तरह कोई क्लिनिक में बैठ के समझते हैं आप कर रहे हैं, तो वो कंसल्टेशन आप कर सकते हैं. लेकिन आपको to do that you have to call on this number and you have to leave your name and your number, और उसके बाद हम आपको okay, we have a live caller. अस्सलाम वालेकुम. Hello, अस्सलाम वालेकुम. Hello, can you hear me? Hello, assalamu alaikum. Okay, all right. So unfortunately, the call's been dropped, but we will continue with the program. So I was saying कि अगर आप if you live far away from London, और आप लंदन नहीं आ सकते हैं consultation के लिए, even in that case आपके पास facility available है. You can have a consultation over the telephone, and then you can actually get your remedies through post. So that is available as well. Now, going back to my today's topic, which was nervous system. Nervous system में मैंने आपको बताया था कि backbone is the main thing. इसके अलावा आपका दिमाग आता है, आपकी skull आती है, और आपकी nerves जिन्हें के उर्दू में असाब कहते हैं वो आते हैं. So nervous system किस तरह काम करता है, इसकी दो कह लें कि चीज़ों पे मुश्तमिल है ये. एक, जिस तरह के फ़र्ज़ करें आपने गरम पैन है उसको हाथ लगाया है, ठीक है, आपकी स्किन जली है, तो आपकी स्किन के अंदर सेंसर्स होते हैं, उन्होंने फ़ौरन दिमाग को भेजा है साइन के सिग्नल भेजा है कि मुझे दर्द हुआ है. सो दर्द फीलिंग है एक जो कि महसूस की आपकी स्किन ने, ठीक. एक दर्द फीलिंग है जो कि स्किन के अंदर जो सेंसर सेल्स हैं उन्होंने महसूस की, और उन्होंने फ़ौरन सिग्नल भेजा थ्रू योर नर्व्स, सिग्नल भेजा दिमाग के अंदर कि भाई मुझे दर्द महसूस हुई है. उस सूरत में दिमाग वापस okay, we have another live call. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. ये ब्रेक प्रॉब्लम के अलावा भी आपसे क्वेश्चन कर सकती हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं. मैंने हे फीवर के बारे में पूछना था. जी, क्या पूछना चाहते हैं आप?
آپ کی آواز مجھے بالکل نہیں آ رہی. اوکے, اب آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ بہت دن میں بہت ہلکی آواز. اچھا, سوری, آئی تھنک دیر مے بی اے ٹیکنیکل ایشو. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہی. اب آپ کو فیور کے بارے میں پوچھنا تھا, اگر آپ کچھ ہیلپ کر سکیں. میری بیٹی ہے, اسے اس قدر وہ بیچاری پریشان ہے کہ اسے ہے فیور, یہی سمجھے کہ 24 گھنٹے سے یہی تکلیف رہتی. صحیح, ٹھیک ہے سسٹر, آئی تھنک اب بہتر یہ ہوگا کہ آپ ٹیلی فون کال کے علاوہ ٹی وی سے آپ مجھے سننے کی کوشش کریں. اگر آپ کو آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے میں آپ کو انشاءاللہ ویری کوئکلی I'll answer your question. You keep on listening. آپ اس طرح کریں کہ ٹی وی کے تھرو مجھے آپ کال بند کر دیں اور آپ ٹی وی کے تھرو مجھے سننے کی کوشش کریں, تو میں آپ کو جواب دیتی ہوں کہ ہے فیور کے بارے میں. اینڈ بفور دیٹ آپ یو موو آن, میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ آپ میرے پروگرام دیکھتے رہیں. انشاءاللہ آنے والے پروگرامز کے اندر میں نے ایک پورا پروگرام کرنا ہے الرجیز کے اوپر, جس کے اندر ہے فیور بھی ہوگا, اور انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہے فیور کیوں ہوتا ہے زیادہ ڈیٹیل کے اندر. ٹوڈے I'll just touch on it کہ ہے فیور نارملی جب ہوتا ہے تو ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ سمٹمز ہوتے ہیں. نارملی سمر, اسپرنگ اینڈ سمر کے موسم میں ہوتا ہے, اور سمٹمز میں آپ کو کیا کہتے ہیں, واٹری آئیز, آپ کی آنکھوں میں سے جس طرح آنسو بندے کے ہوتے ہیں اس طرح کافی زیادہ پانی نکلتا ہے, آنکھیں لال ہو جاتی ہیں, جلن ہوتی ہے, آپ کی ناک میں سے پانی نکلتا ہے. سو you can imagine کہ بندے کو اگر فلو ہو جائے ایک ہفتے کے لیے, so life becomes miserable. اور unfortunately جن لوگوں کو ہے فیور ہوتا ہے, they suffer for the whole season with this problem. تو وہ کافی inconvenient ہو جاتا ہے, ڈیلی لائف میں کافی انٹرپٹ کرتا ہے. So the good news is کہ ہومیوپیتھی میں ہے فیور کا بہت کامیاب علاج ہے. It's very very good for treating. It's actually one of hay fever is one of the problems کہ جس کا success rate بہت زیادہ ہے in terms of the treatment. So what I would suggest کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل آپ نے جی پی کو دکھایا ہے اور ان سے دوائی وغیرہ لی ہے, لیکن اگر آپ ہومیوپیتھک اپروچ اب استعمال کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے, تو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا جو سمٹمز میں نے آپ کو بتایا ہے اس کی یہ سائنس کی پرابلم ہے, ناک مطلب ناک کا مسئلہ ہوتا ہے. بٹ ہومیوپیتھک پوائنٹ آف ویو سے از مچ مور ڈیپر دین جسٹ فزیکل پرابلم. سو اس کو سمجھنے کے لیے کہ کس وجہ سے ہے فیور ہے, وی ہیو ٹو ڈو اے پراپر کنسلٹیشن. اگر آپ لندن, سوری مجھے پتہ نہیں چلا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں, اگر آپ لندن سے باہر سے بات کر رہے ہیں تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ اسی نمبر پہ کال کر کے, اس پروگرام کے بعد میں یہیں پہ ہوں گی فار سم ٹائم, آپ اسی نمبر پہ کال کر کے مجھ سے ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکتے ہیں اور ہم کنسلٹیشن کر سکتے ہیں, اینڈ دین آئی کین ایکچولی پرسکرائب یور ڈاٹر سم تھنگ, آپ کی بیٹی کو کوئی دوائی دے سکتے ہیں اس بارے میں, اینڈ دین ہوپ فلی انشاءاللہ شی کین گیٹ آؤٹ آف دس پرابلم اینڈ شی کین گیٹ ریڈ آف دس ہے فیور پرابلم. سو اگر آپ لنڈن میں ہی ہیں, یو کین کم ان ٹو مائی کلینک اینڈ یو کین ایکچولی برنگ یور ڈاٹر ان اینڈ آئی کین ہیو اے consultation with her and then we can take things on from there. ناظرین program جاری ہے اور you can still call in. It doesn't have to be related to the topic that I'm discussing. اس topic کے علاوہ بھی اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں, آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی جنرل ایڈوائز لینا چاہتے ہیں, تو آپ کال کر سکتے ہیں. ناظرین میں یہ کہنا چاہوں گی کہ the program unfortunately is just an hour, اس لیے میں ہر بہت زیادہ ڈیپتھ میں آپ کو آنسر نہیں دے سکتی. It's I'm very limited, so what you have to do is اگر آپ thank you so much for calling into the show first thing, but if you wish to discuss your problem further, your health issue further, then all you need to do is call me after this hour. So after 6 o'clock you can call me on the same number and we can then take things on from there. We can do a consultation with you and we can address your health issues. So let's go back to our topic of nervous system. سو نروس سسٹم, میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کسی گرم چیز کو ٹچ کرتے ہیں اور وہ واپس دماغ کے پاس سگنل جاتا ہے, اور پھر دماغ انہی نروس کے تھرو آپ کو ہاتھ کو سگنل بھیجتا ہے اور ہاتھ جو ہے وہ آپ کا دور ہٹ جاتا ہے گرم چیز سے. سو دس از, یہ سارا جو ایکٹ ہوتا ہے
फील करने का, गर्म चीज़ को और जलने का एहसास होना, उसके बाद दिमाग को सिग्नल जाना और फिर आपका हाथ उठाना, ये सब चीज़ें जो है these are part of your nervous system. लेकिन होम्यो सो यू नो इसमें कौन कौन सी बीमारियां आ जाती हैं. अगर आपको फॉर एग्जांपल सर में दर्द हो रहा है, अगर आपको माइग्रेन होती है, अगर आपको डिप्रेशन है, अगर आपको एंजाइटी है, यू नो ये जितनी भी चीज़ें हैं, एडिक्शन है वन ऑफ द मेन थिंग्स, ये सब चीज़ें जो हैं ये इस नर्वस सिस्टम की अम्ब्रेला के अंडर आती हैं. और ये मैं डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह सम टुडे. आई डोंट थिंक आई एम गोना बी एबल टू फिनिश इट, लेकिन ओवर next couple of programs. So आज के प्रोग्राम में I'm actually going to discuss addiction. Addiction में क्या आता है कि, और जो भी मैं बात कर रही हूँ it's in homeopathic point of view कि हमारे you know as homeopath जो है उनके ख्याल में क्यों addiction पैदा होती है और उसको किस तरह ट्रीट किया जा सकता है. So we believe कि किसी भी चीज़ की आदत जिसको आप कहते हैं यू नो लग जाना, फॉर एग्जांपल लोगों को स्मोकिंग की आदत हो जाती है, कुछ लोग होते हैं उनको ओवर स्पेंडिंग की आदत होती है, कुछ लोगों को गैम्बलिंग की आदत होती है, कुछ लोगों को अल्कोहल अनफॉर्चुनेटली कंज्यूम करने की आदत पड़ जाती है. सो ये सब किस्म के, जिसको आप नशा भी कह सकते हैं आम ज़बान में, ड्रग्स वगैरह, ये तमाम मसाइल जो हैं इनका ये बहुत कॉमन हो चुके हैं अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में. लेकिन इनका हल क्या है और ये क्यों होते हैं? That's the question. Why do we get addicted to different things? Well, the answer is कि जिस वक़्त आपकी inner self जो है, जो आपका अंदर एक आप कह लें रूह है, एक सोल है, एक you know there is person inside you, जिस वक्त उन्हें उस बंदे को कोई चीज़ हासिल नहीं होती जो कि वो हासिल करना चाहता है, जिस वक्त उनको अपनी ज़िंदगी का मकसद लूज़ हो जाता है, जिस वक्त वो अपने किसी लव्ड वन को लूज़ करते हैं, जिस वक्त वो किसी गम के थ्रू जा रहे होते हैं, जिस वक्त उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है जो कि उनके पूरे जिस्म को डिस्टर्ब कर देता है. सो ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स जो हैं, ये जब आप सफ़र करते हैं डिफरेंट चीज़ों से, दैट इज़ द टाइम जिस वक्त आपको अपने अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही होती, तो आप बाहर की मटीरियलिस्टिक चीज़ों से, डिफरेंट सब्सटेंसेस से वो सेटिस्फेक्शन हासिल करने की कोशिश करते हैं. और शुरू में वो एक रिलीफ होता है अपने अंदर की, एक तरह से आप कह लें जंग से लड़ने के लिए, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो अनफॉर्चुनेटली एक बैड एडिक्शन बन जाती है. और फिर उस एडिक्शन को डील करना इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर कोई एडिक्शन सही वक्त के ऊपर सही तरह से डील ना की जाए, it can be life threatening. And we all know smoking is a huge example. अगर एक you know smoking आप you know you can start casually, you can start because of stress or anything, you know many reasons अभी explain किए हैं, but वो as a आदत you know बनती है, and then you end up being a chain smoker and you end up you know dying basically earlier than you know in the age that maybe you could have lived for. So ये सब वजूहात जो है you know they can cause you being addicted of different things. What I'm going to do is आने वाले प्रोग्राम में मैं डिस्कस करूँगी कि कौन सी डिफरेंट किस्म की एडिक्शंस होती हैं, उनके लिए रीजंस क्या हैं उनके पीछे. I'm also going to be discussing about depression. I will also be discussing about anxiety, anxiousness, रात को नींद ना आना, insomnia, different you know headaches, especially migraine. ये it all is under the umbrella of nervous system, and this is what I will be discussing in my coming programs, inshallah. Some of it on Thursday, and if we couldn't finish on Thursday, then next week on Tuesday. So keep watching Nazreen, keep giving me your feedback. I would say कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया वो लोगों का जो कॉल करते हैं. I do hope कि मैं आपके जो questions हैं उन्हें किसी हद तक आंसर कर पाती हूँ. इसके अलावा अगर आप मज़ीद कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो इसी नंबर के ऊपर आप अब कॉल कर सकते हैं आफ्टर दिस प्रोग्राम, एंड आई विल बी देयर टेकिंग योर कॉल्स. उन तमाम नाजरीन का शुक्रिया जो कि हमें फ़ीडबैक प्रोवाइड करते हैं. इट्स बिकॉज ऑफ योर फीडबैक एंड योर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के आई एम ट्राइंग टू मेक दिस प्रोग्राम बेटर एंड more. I'm trying to raise awareness of people through this program on different health issues and on different approaches of treatment जो कि available है.
So thank you very much for watching this. Do not forget to tune in on TV99 next week, this week, coming Thursday, between on Thursday after a day, between 5 and 6. And I will see you there on the same time, same place. And take care of yourself, take care of the people around you. Assalamu alaikum. حبيبي وطني الغالي وطن النجم العالي وطن جعل مضيء المجاريح وطني وطني الغالي وطني يا نبي سلام عليك يا رسول سلام